ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ करके बोलोगे वाहिगुरु। हम हैं गुरुओं की नगरी अमृतसर में और ये है श्री हरमंदिर साहिब जी, जहाँ श्रद्धा, सेवा और समर्पण एक साथ अनुभव होते हैं। यहाँ आने वाले सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गुरु घर के दर्शन को आते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य स्थान की ओर जहाँ हर दिन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग लंगर छकते हैं। एक ऐसा लंगर जो केवल भूख ही नहीं मिटाता बल्कि समानता, सेवा और भाईचारे का भी संदेश देता है। आइए देखते हैं कैसे ये अद्भुत सेवा हर दिन बिना रुके प्रेम और भक्ति से चलाई जाती है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਵੀ ਸਭ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਣਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਸ਼ੇਰਾ ਜੀ। दरबार साहिब के 4 दिव्य द्वार हैं जो इस बात का प्रतीक हैं यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग समान भाव से आ सकते हैं दर्शन करने, सेवा करने और शांति पाने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दरबार साहिब नीचे की ओर क्यों बनाया गया है। आपने ये देखा होगा हम सीढ़ियाँ उतरकर दरबार साहिब पहुँचते हैं। ये केवल एक रचना नहीं बल्कि नम्रता का प्रतीक है। दस्तार पहनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ़ एक वस्त्र नहीं है। पहले हिंदुस्तान में सभी लोग दस्तार या पगड़ी पहनते थे, लेकिन जब कुछ शासकों ने ये आदेश दिया कि अब कोई दस्तार नहीं पहनेगा, तब गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने सभी के सिर पर दस्तार सजाई। ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਾਰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਮ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁਲਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਰਨ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਮੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਡੇਲੀ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 3-3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। हरमंदिर साहिब में सेवा केवल एक कार्य नहीं है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। कोई बर्तन धोता है, कोई लंगर परोसता है, तो कोई फर्श चमकाता है। ये वो स्थान है जहाँ हर जाति, वर्ग
और धर्म का व्यक्ति सिर झुकाकर सेवा करता है। सेवा यहाँ केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और विनम्रता की साधना है और यही सिख धर्म का मूल है। आप सब देख रहे हैं कि हम कितनी रूहानी जो शक्ति है, जहाँ खाना बन रहा है, कितनी श्रद्धा से ये तैयार होता है, सिर्फ नाम सिमरन करते हुए। इसीलिए लंगर बोला जाता है। परमात्मा के नाम के साथ ही इसको बनाया जाता है, तभी इसमें वो सारे गुण आते हैं जो हमारे अंदर रूहानी शक्ति लेके आते हैं परमात्मा की, वाहिगुरु की। 5 घंटे इसको पकने में लगते हैं। ये 4 क्विंटल दाल है, 5 से 6 घंटे में रीझती है। ये आप देख रहे हो ट्रेडिशनल वे में, नीचे जो आग है धीमी आंच पे पक रही है। 24 घंटे लंगर चलता है जी, और 25 से 28 या 30 क्विंटल तक दाल बनती है, कच्ची दाल। हाँ जी, कच्ची दाल। कच्ची दाल 3000 किलो तक रोज़ बनती है। आप देखिए कितनी कृपा है यहाँ पे। प्योर देसी घी में दाल पक रही है, और सबसे बड़ा कमाल श्रद्धा का है यहाँ पे। 400 किलो दाल बन रही है जी ये, और 400 किलो दाल में 40 लीटर घी लगा है और 20 लीटर के करीब सरसों का तेल लगा है, और 16 किलो अदरक लहसुन। आप देखिए पूरी रेशो आपको बता रहे हैं हम, ताकि हमें पता लगे कि कितनी मेहनत होती है इतना करने के पीछे। और ये सब कृपा, वाहिगुरु जी की कृपा है, तो ये सब इतनी आसानी से हो रहा है। और मसाले में इसमें डलती है 6 किलो हल्दी और 2 किलो गरम मसाला, जो अपना खुद पीसते हैं। 200 किलो चावल की खीर तैयार हो रही है, जिसके लिए दूध कितना लग रहा है? जैसे हम तो 1 किलो में 50 ग्राम या 100 ग्राम लगाते हैं, वही हिसाब है। ਜਿਹੜੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ 'ਚ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, 1200 किलो दूध में 200 किलो चावल गए हैं। वाह। जी, संगत अंदाजन संगत कितनी जो प्रसादा छक रही है 24 घंटे में? वैसे तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, फिर भी 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ तो छकी ਜਾਂਦੀ तकरीबन। 2 से 2.5 लाख संगत जो है यहाँ पे रोज़ प्रसादा छक के जा रही है। और गुरु जी की कृपा ये है कि हर तरह के लोग यहाँ पे आके प्रसाद छकते हैं। कोई भी कास्ट है, कोई भी जात है, सब एक ही लाइन में बैठ के, चाहे वो किसी भी कंपनी का चेयरमैन है या किसी भी कंपनी में कुछ भी है, वो सब एक ही लाइन में बैठ के खाते हैं। और यही यहाँ की खासियत है जो हमें सबको एक दूसरे से जोड़ती है और प्यार सिखाती है। कितनी हैरानी की बात है कि लंगर बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर राशन का इंतज़ाम किया जाता है। 3 क्विंटल हरी सब्ज़ी से सब्ज़ी बनाई जाती है, और आटा 100 से 120 क्विंटल लिया जाता है प्रसादा बनाने के लिए। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए 20 से 25 और कई बार 30 टिन तक घी के लग जाते हैं। और काले चने, राजमा, ये सब 10 से 15 क्विंटल कच्चे रोज़ बनाए जाते हैं। आलू 20 से 25 क्विंटल बनते हैं, और चीनी 20 क्विंटल चीनी लगती है चाय बनने में। है ना हैरानी की बात। और ये है लंगर हॉल का वो स्थान जहाँ पर हाथों से प्रसादे बनाए जाते हैं, यानी कि रोटियाँ। इनको प्रसादा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रसाद का भाव है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेवा भाव से सब माताएं और बहनें प्रसादा बना रही हैं और इसका आनंद उठा रही हैं सेवा का। मशीनें भी लगी हैं, और एक मशीन 5 से 7 हज़ार प्रसादा 1 घंटे में बनाती हैं। तो ऐसी 5 मशीनें भी हैं, लेकिन जो आनंद हाथ से सेवा करके है वो तो खैर बयान किया ही नहीं जा सकता। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ
ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦਾਸ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ जी, वो ही चला रहे। गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने वंड छकना को सिख जीवन शैली का हिस्सा बनाया, जिससे समाज में समानता, सेवा और करुणा को बढ़ावा मिले। गुरु अंगद देव जी ने इस परंपरा को संगठित रूप में आगे बढ़ाया और हर गुरुद्वारे में लंगर अनिवार्य किया। तीसरे गुरु अमरदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता उसे पहले पंगत में बैठकर लंगर खाना अनिवार्य था, चाहे वह राजा था या साधारण व्यक्ति। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਡੇਲੀ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं सेवा करती हूँ गुरु रामदास की। आप देखिए कैसे श्रद्धा जब जागी होती है अंदर, 50-60 साल से रोज़ आना और सेवा भी करनी। हाँ जी, और सबसे ज़रूरी है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि प्रसादे को छकना। अगर हमने हाँ जी। हाथ फैला के एक बार छक लिया तो वो कृपा कभी ख़त्म ही नहीं होनी है परमात्मा की, वाहिगुरु की। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 24 घंटे ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਇਸ ਠੰਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਚਲਾਈਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੁਆਈ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, वो बाहर चलती रहेगी। ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 2000 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹ मतलब ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੋ 20 ਵਾਰ 24 ਵਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2000 किलो दूध की चाय हर घंटे में बनती है और लग जाती है और ये 24 घंटे चलेगी। 24 घंटे चाह ਚੱਲਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਖੜ ਸਕਦੀ। खाली हिंदुस्तान से नहीं, एक जाति नहीं, पूरे दुनिया से कोई भी चाहे फॉरेनर आए किसी भी देश से, किसी के बच्चे को दूध चाहिए तो उसका स्पेशल इंतजाम है। बहुत सफाई से उस दूध को गर्म करके रखा जाता है ताकि उसमें, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं दूध खुला नहीं रखना है, तो मतलब बहुत एहतियात से कि छोटा बच्चा भी पी सकता है। ये श्रद्धा का लेवल देखिए कहाँ तक है, जो सबका इंतज़ाम किया जा रहा है। 1983 ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੂ ਭਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब 45 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਏ। अभी तक आपने देखा कि कैसे लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ से लंगर छक कर जा रहे हैं, लेकिन ये जो नज़ारा है जहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं, ये तो देखने लायक है। किस तरीके से सब सेवा भाव से बच्चे, बुज़ुर्ग, हर उम्र के लोग अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं और अपने हाथों से बर्तन धो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मशीन नहीं लग सकती, लेकिन उन सबका मानना है कि फिर सेवा का मौका भी छिन जाएगा उनके हाथों से। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि 1 लाख बर्तन यहाँ पर हमेशा धुलता रहता है और इतना ही 1 लाख बर्तन लंगर हॉल में परोसने के लिए तैयार रहता है।